اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والبلد اور زمین اور البلد زمین یا شہر الطیب پاکیزہ والبلد الطیب اور پاکیزہ زمین یخرجو نکلتا ہے نباتہ اس کا سبزہ بِإِذْنِ ساتھ اذن سے بِإِذْنِ ساتھ اذن سے ربی ہی اس کے رب کے بِإِذْنِ ربی ہی اپنے رب کے حکم سے جو پاکیزہ زمین ہے اس کا سبزہ نکلتا ہے والذی اور وہ جو حابسہ خراب ہو لا نہیں یخرج نکلتا الا مگر ناقدن بے فائدہ چیز اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس سے صرف تھوڑی سی بے فائدہ چیز نکلتی ہے کذالک اسی طرح نصرف ہم بار بار بیان کرتے ہیں الآیاتی آیات کو لقوم ایسے لوگوں کے لیے یشکرون جو شکر ادا کرتے ہیں تو ہم بار بار آیات بیان کرتے ہیں شکر گزار لوگوں کے لیے۔ ابھی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی زمین اور ایک بری زمین، ایک اچھی زمین اور خراب زمین، اس کے درمیان فرق بیان کیا ہے اور پھر اس سے ہدایت کو سمجھایا ہے، ہدایت کو اس سے واضح کیا ہے اس مثال سے۔ جس طرح دیکھیں کہ دنیا میں ساری زمینیں ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ زمینیں ہوتی ہیں جن میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، زرخیز، سرسبز اور نرم ہوتی ہیں، ان میں بارش سے بہت زیادہ سبزہ اگتا ہے، ہریالی آتی ہے، پھل پھول لگتے ہیں، یہ ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو چٹیل میدان کی طرح ہوتی ہیں، وہ سخت ہوتی ہیں، ان میں پانی نہیں ٹھہرتا، پانی ان سے پھسل جاتا ہے اور ان پر کوئی چیز نہیں اگتی، وہ شور زدہ زمینیں ہوتی ہیں، تھور زدہ زمینیں ہوتی ہیں۔ تو یہ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں پانی نہیں ٹھہرتا، یا وہ بڑی خراب زمینیں ہوتی ہیں کہ وہاں سے سرسبزہ و ہریالی کے بجائے وہاں سے دلدل اور کانٹے اور حس و خاشاک یہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ اس زمین میں ہریالی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سخت ہوتی ہیں جو پانی کو اپنے اندر روک لیتی ہیں، پانی کو اپنے اندر روک لیتی ہیں، ایسی زمینیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہاں دراصل اللہ تعالیٰ نے زمینوں کی مثال سے آسمانی ہدایت کو سمجھایا ہے انسانوں کو۔ فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی، کہ جو اچھی زرخیز زمین ہوتی ہے اس کا سبزہ خوب نکلتا ہے، اپنے رب کے حکم سے وہ خوب سبزہ اس کا اگتا ہے، بارش پڑتی ہے وہ زمین جذب کرتی ہے تو ہریالی اور یہ چیزیں خوب پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا والذی حبس لا یخرج الا ناقدا، اور جو زمین خراب ہو، خبیث زمین ہو، شور زدہ ہو، تھور زدہ ہو، تو وہ زمین فرمایا کہ ایسی زمین اس سے بہت کم تھوڑے فائدے کی چیزیں پیدا ہوتی ہے، بے فائدہ تھوڑی سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وہاں صرف کانٹے اگتے ہیں، گھاس پھونس پیدا ہوتا ہے، دلدل پیدا ہوتی ہے، بس یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔
कज़ालिका नुसर्रिफुल आयाति लिकौमि यशकुरून। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इसी तरह हम आयात को बार बार बदल बदल कर बयान करते हैं शुक्रगुजार लोगों के लिए। तो ये दरअसल जिस तरह हम पिछली आयत में पढ़े हैं कि अल्लाह ताला ने बारिश से अपने वजूद की दलील दी, अपनी वहदानियत की दलील दी, और इसी तरह इस आयत में अल्लाह ताला ने बारिश जिन जिन ज़मीनों को सैराब करती है उसके ज़रिए आसमानी हिदायत को समझाया है बंदों को कि अल्लाह की तरफ से जो आयात उतरती हैं उसका पैगाम उतरता है, उसका कलाम उतरता है। तो जिस तरह ज़मीनें मुख्तलिफ होती हैं इसी तरह इंसानों के ज़हन, इंसानों को दिमाग, इंसानों के अल्लाह की हिदायत को जज़ब करने की सलाहियत और इनकी कैपेसिटी यह भी मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग अल्लाह के पैगाम को जल्द जज़ब कर लेते हैं और वो अल्लाह की हिदायत पर आ जाता है, अल्लाह का नूर हासिल करते हैं, अहकाम पर अमल पैरा होते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी इस पर बसर कर देते हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खराब ज़मीन की तरह अल्लाह की उतारी हुई हिदायत को कबूल नहीं करते, उनके दिलों पर, उनके दिमाग पर, उनके नफूस पर कोई असर नहीं होता। वो अपनी हट दर्मी से, तअस्सुब से और इनाद से और अपनी नाफरमानियों से अल्लाह के अस्कार और उसके पैगाम से गाफिल रहते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने दरअसल इन ज़मीनों की मिसाल से हिदायत को समझाया है। एक हदीस मुबारक है, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे जो हिदायत और इल्म देकर भेजा है उसकी मिसाल उस कसीर बारिश की तरह है जो ज़मीन पर बरसती हो। और मैं जो इल्म और हिदायत लेकर मैं आया हूँ उसकी मिसाल कसरत से बारिश की तरह है, जो बारिश कसरत से होती हो, ज़मीन पर बरसती हो, उस तरह है। आगे फरमाया उन ज़मीनों में से बात साफ होती हैं, साफ ज़मीनें होती हैं जो बहुत ज़्यादा खुश्क और तर घास उगाती हैं, जो खुश्क होती हैं और तर घास उगाती हैं, और बाज़ ज़मीनें सख्त होती हैं, वो पानी को रोक लेती हैं, वो पानी को रोक लेती हैं। लिहाजा इस ज़मीन से लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, वो इससे पानी पीते हैं, अपने जानवरों को पानी पिलाते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। और फिर आगे फरमाया और बाज़ ज़मीनें हमवार और चिकनी होती हैं, वो हमवार और चिकनी होती हैं, वो ना पानी को रोकती हैं ना घास उगाती हैं, यानी पानी उनसे फिसल जाता है, पानी उन पर नहीं ठहरता, न घास उगाती हैं और न पानी को रोकती हैं। फिर आपने फरमाया बस ये मिसाल उस शख्स की है जो अल्लाह के दीन का फहम हासिल करता है और अल्लाह ने मुझे जो दीन देकर भेजा है वो उसको नफ़ा देता है। यानी जो ज़मीन इस आसमानी हिदायत को जज़ब कर लेती है उससे अल्लाह के दीन से नफ़ा हासिल होता है और वो फ़ायदा हासिल करता है। और फिर आगे फरमाया बस वो इल्म हासिल करता है और लोगों को तालीम देता है। और दूसरी उस शख्स की मिसाल है जो इस दीन की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं करता और इस हिदायत को कबूल नहीं करता जिसके साथ मुझे भेजा गया है, जिसके साथ मुझे भेजा गया है। ये सहीहुल बुखारी में हदीस है, हदीस नंबर 7979। यानी जो हिदायत कबूल करते हैं वो बारिश कबूल करने वाले ज़मीन की तरह होते हैं, और जो दिलो दिमाग हिदायत को कबूल नहीं करते वो उस ज़मीन की तरह होते हैं जो बारिश के पानी को कबूल नहीं करते, अपने अंदर जज्ब नहीं करते। तो इस मिसाल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानी हिदायत को समझाया। फिर आगे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया इसी आयत में 58 में कज़ालिका नुसर्रिफुल आयात, फरमाया इसी तरह
हम आयात बार बार बयान करते हैं। कुरान में ये नुसर्रिफ तसरीफ, ये हवाओं के साथ भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तसरीफ और रिया के हवाओं का बदल बदल कर आना, फेर फेर कर आना, चक्कर लगाना। तो इस तरह अल्लाह ताला ने आयात के साथ भी ये तसरीफ का लफ्ज़ बोला है। कज़ालिक नुसर्रिफुल आयात, मतलब ये है कि मुख्तलिफ जेहतों से, मुख्तलिफ एंगल से अल्लाह ताला अपनी आयात को बयान करता है। और किन लोगों के लिए? लिकौमी यशकुरून, उन लोगों के लिए जो शुक्रगुजार होते हैं। शुक्रगुजार कौन होते हैं? जो कदरदान होते हैं, जिनको नेमतों की कदर होती है, जिनको पता होता है कि ये हमारे मालिक ने हमारी भलाई के लिए ये अहकाम उतारे हैं। तो फरमाया अल्लाह ताला इन आयात को बदल बदल कर बयान करते हैं ताकि शुक्रगुजार लोगों के लिए, जो कदरदान होते हैं और उनका पता होता है कि इसमें हमारे लिए भलाई है, हमारे लिए खैर है। इसके बाद है सूरतुल आराफ आयत नंबर 59। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द, ला अलबत्ता, जरूर, कद बेशक, लक़द जरूर बेशक, अरसलना, अरसलना हमने भेजा, नूह अलैहिस्सलाम को, इला तरफ कौमी ही, कौम ही उनके, इला कौमी ही उनकी कौम की तरफ, फ़क़ाला तो उन्होंने कहा, या कौमी ए मेरी कौम, उअबुदुल्लाह, उबुदु तुम इबादत करो, अल्लाह अल्लाह की, ए मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो, माँ नहीं है लकुम लिए तुम्हारे, मिन से इलाहिन कोई माबूद, गैरुहु, गैरु इलावा हु उसके, फ़क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, तो उन्होंने कहा ए मेरी कौम तुम उस अल्लाह की इबादत करो जिसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। इन्नी बेशक मैं, अहाफू डरता हूँ, अलैकुम अला ऊपर, कुम तुम्हारे, अजाब अजाब के, यौमिन उस दिन के, अजीमुन बड़े, इन्नी अहाफू अलैकुम अजाब यौमिन अजीम, यकीनन मुझे तुम्हारे ऊपर एक बड़े दिन के अजाब का खौफ है। एक बड़े दिन के अजाब का खौफ होता है तुम्हारे ऊपर, खतरा है। अब इस आयत मुबारका से ये आगे चलेंगी, तकरीबन काफ़ी आयात आगे चलेंगी। तो यहाँ से जो अल्लाह ताला ने इस सूरत के शुरू में अपनी तौहीद को बयान किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक का ज़िक्र किया, फिर शैतान का ज़िक्र किया कि शैतान मगरूर हो गया, मुतकब्बिर हो गया, उसने अल्लाह को सजदा करने से इनकार कर दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने बाद में अपने तौहीद के मज़ीद दलाइल दिए और फिर आखिरत का भी ज़िक्र हुआ, अस्हाबुल आराफ, अहले जन्नत, अहले दोज़ख का ज़िक्र हुआ। फिर अल्लाह ताला ने बारिश के ज़रिए और बाज़ और ज़मीन व आसमानों की तहलीक से उससे अपने वजूद वहदानियत की दलाइल बयान किए। अब यहाँ से तरीही दलाइल बयान हो रहे हैं अल्लाह की वहदानियत की और अल्लाह की तरफ से हिदायत की हक्कानियत के तरीही दलाइल बयान हो रहे हैं। क्योंकि कुरान अरब मुआशरे में उतरा था, कुरान अरब मुआशरे में आया था, जो अरब हित्ता था, और वहाँ के लोग पहले कुरान के मुहातबीन थे। तो उनके इर्द गिर्द रहने वाले शमाल मगरिब में जितने हित्ते थे जो उनके इर्द गिर्द थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए और फिर उनके तवस्सुस से सारी दुनिया की हिदायत के लिए ये तरीही वाक़यात बयान किए हैं, ताकि इंसानों को पता चल जाए कि जिन लोगों ने
रब की तरफ से उतरी हुई तालीमात को माना, वो सुरखरू हो गए, वो कामयाब हो गए। और जिन्होंने अल्लाह की उतरी हुई तालीमात से इनहिराफ किया, पहलुतही की, नाफरमानी की, तो ऐसी कौमें दुनिया से सफ़ा हस्ती से मिटा दी गई, ऐसी कौमें सफ़ा हस्ती से मिटा दी गई। तो तरीही तसलसल से अल्लाह ताला ने इन वाक़यात का जिक्र किया है, और इसमें तरतीब भी उनकी तरीही है। यानी जैसे पहले तरीक़ के लिहाज से पहले रसूल नबी आए, फिर उनके बाद आए, फिर उनके बाद आए, तो इनमें इन वाक़यात में तरीही तसलसल भी है इन वाक़यात के पेश आने में। तो सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ताला ने जिक्र किया। फरमाया बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इनका शजरा नसब ये है, नूह बिन लामिक बिन मुतलोशिख बिन हनूह। हनूह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी कहते हैं, बिन यर्द। तो ये उनका सिलसिला नस्ब है जो ऊपर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक जाके मिलता है। अब इनके और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना अरसा था? हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या हजरत आदम नबी थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ वो नबी थे, वैसे नबी थे जिनसे कलाम किया गया। तो उसने पूछा हजरत आदम और हजरत नूह के दरमियान कितना अरसा है, इनके दरमियान कितना अरसा है? तो आपने फरमाया 10 कर्न, यानी 10 सदियां। और एक सदी जो है वो 100 साल या इसके करीब करीब होती है, यानी 1000 साल का अरसा था हजरत आदम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान। यह सही इब्ने हिब्बान में हदीस है, हदीस नंबर 6190, और ये हदीस सही है। फिर एक हदीस है, इमाम इब्ने साद ने इकरमा से रवायत किया कि हजरत आदम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 कर्न है। उस हदीस में भी यही है, तबकात इब्ने साद में ये हदीस है। और अब ये मबूस किस वक़्त हुए? हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इनकी बेसत की उम्र में इख्तिलाफ है। एक कौल यह है कि उस वक़्त उनकी उम्र 50 साल थी, दूसरा कौल यह है कि उस वक़्त उनकी उम्र 350 साल थी। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी कौल है कि उनकी उम्र उस वक़्त 84 साल थी। लेकिन उनकी जो तबलीग का अरसा है वो कुरान में जिक्र है कि वो 950 साल का था। ये सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 14, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा, वो उनमें 50 साल कम 1000 साल रहे, यानी उनमें 1000 साल रहे, 50 साल कम, तो 950 साल तक उनकी तबलीग का अरसा रहा। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ये रहा। अब जिस वक्त इतना गैप आ गया 1000 साल का, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम, तो इनमें लोगों के अंदर शैतान ने, इबलीस ने बुत परस्ती पैदा कर दी, शिरक पैदा कर दिया, और वो माबूदा ने बातिला को पूजने लगे। उनमें तरह तरह के माबूद उन्होंने बना लिए, जिनका कुरान में भी जिक्र आता है, बुध, यागूस, याऊक, सुवा, नसर, ये उन्होंने बुत बना लिए। ये दरअसल नेक लोग थे, तो ये फोत हो गए, तो बाद में लोगों ने उनकी पूजा शुरू कर दी, उनकी इबादत शुरू कर दी। तो उन्होंने ये माबूदा ने बातिला बना लिए और उनको खुदा समझने लगे और खुदा के मुकाबिल ले आए।
اب اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کی جو تبلیغ کا مرکز تھا، جو ٹوٹلی ان کی تبلیغ کا مرکز تھا، وہ یہی نقطہ تھا، اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلانا، شرک کا رد کرنا، توحید کی دعوت دینا۔ یہ بات یاد رکھے کہ جیسے جیسے زمانہ چلتا گیا، گزرتا گیا اور فتنے پیدا ہوتے گئے، مختلف اقوام کے اندر مختلف فتنے پیدا ہوئے، تو انبیاء کرام کی جو دعوت کے مرکزی اہداف وہ بھی بدلتے چلے گئے، وہ بھی ان کے مرکزی اہداف بدلتے چلے گئے۔ تو ان کا مرکزی ہدف تھا لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف، اس کی عبادت کی طرف بلانا، جس کا اس آیت میں بھی ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا۔ پھر آگے فرماتی ہیں انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ یعنی قوم اتنی ہٹ دھرم ہو چکی تھی، اتنی تعصب میں، عناد میں، اللہ کی اتنی باغی ہو چکی تھی، نافرمان ہو چکی تھی کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب کے خوف سے ڈرایا کہ اگر تم نے اپنی یہ روش نہ چھوڑی، اپنی یہ مخالفت نہ چھوڑی اور توحید کی طرف نہ آئے، اللہ کو معبود برحق نہ مانا، تو پھر تم پر مجھے عذاب الہی کا خطرہ ہے۔ ابھی سے اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا کو، جو موجودہ دنیا کو بھی میسج دیا کہ جو قوم بھی ہدایت پر رہتی ہے تو وہ اسے بقا نصیب ہوتی ہے، اور جو قوم اللہ تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کر دیتی ہے، پس سے پوچھ ڈال دیتی ہے، تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 60، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 60، فرمایا قالا، فرمایا کہا، الملأ سرداروں نے، من قومہ ان کی قوم سے، قال الملأ من قومہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، انا بے شک ہم، لنراکا، لنرا ہم ضرور دیکھتے ہیں، کا آپ کو، فی میں ضلال گمراہی میں، مبین کھلے۔ الملأ کہتے ہیں کسی بھی قوم کے سردار، وڈیرے، جن کا معاشی منصب ہوتا ہے، یا جو قوم کی باغ دور سنبھالتے ہیں، قوم جن کی بات مانتے ہیں، جن کے پیچھے چلتی ہے، جن کا سیاسی اثر و رسوخ ہوتا ہے یا معاشرتی اثر و رسوخ ہوتا ہے، انہیں بولتے ہیں مالا، مالا انہوں نے بولتے ہیں۔ یاد رکھیے جب بھی حق کی دعوت لے کر انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تو سب سے زیادہ بڑھ کر ان کی مخالفت اس قوم کے جو وڈیرے، سردار، جاگیردار، سرمایہ دار، کرپٹ عناصر انہوں نے کی، کیونکہ ان کی چودراہٹ کو سرداری کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر لوگ حق کے پیچھے چلنے لگے تو وہ ہمیں چھوڑ دیں گے، ہماری چودراہٹ، سرداری ختم ہو جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں، یہ قرآن ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ ان کی قوم کے لوگ کہنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ قوم کا لفظ بولتا تو اس کا مراد ہوتا عامت الناس، عام لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی دعوت کو سب سے پہلے سرداروں نے جھٹلایا، ان کی قوم کے وڈیروں نے، جاگیرداروں نے، سرمایہ دار، کرپٹ عناصر نے، انہوں نے جھٹلایا۔ تو ان کی قوم کے سردار وڈیرے کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین، کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی وہ اتنے بھٹکے ہوئے تھے، اتنے راہ حق سے بہکے ہوئے تھے، پھسلے ہوئے تھے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو ضلال مبین کا تانا زنی کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے آباء و اجداد کے دین کے مخالف ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے طریق کو چھوڑ رہے ہیں، لہٰذا آپ گمراہ ہیں، اور آپ یہ پتہ نہیں کون سا دین لے کر آ گئے ہیں۔ اس طرح معاذ اللہ تانا زنی کرنے لگے۔
आगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, सूरतुल आराफ आयत नंबर 61 61। उन्होंने फरमाया क़ाला, उन्होंने कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, लैसा नहीं है, बी मुझ में, दलालतुन कोई गुमराही। तो उन्होंने अपनी सफाई दी, उन्होंने कहा ए मेरी कौम, मुझ में कोई गुमराही नहीं है, वलाकिन्नी, लेकिन मैं, रसूल रसूल हूँ, मिन से रब्बिल, रब अल आलमीन, तमाम जहानों के, मिन रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के रब की तरफ से मैं रसूल हूँ। वलाकिन्नी रसूल मिन रब्बिल आलमीन, लेकिन मैं हकीकत में तमाम जहानों के रब की तरफ से रसूल हूँ, रसूल मबूस हुआ हूँ। कौम ने चूंकि ताना दे दिया था और वो इस ताने से पाक थे, वो तो अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल बनकर आए थे, अल्लाह ने उन्हें रिसालत का मनसब दिया था। अगर वो अपनी कौम को इसका जवाब ना भी देते तो अल्लाह की तरफ से उनकी पकड़ नहीं होनी थी। लेकिन फिर भी देखिए कि उन्होंने अपने दामन की सफाई दी, अपनी पकीजगी की सफाई दी, और उन्होंने कहा, काल या कौमी लैसा बी दलालतुन, ऐ मेरी कौम, मुझ में कोई जलालत नहीं है, किसी तरह की जलालत, गुमराही उसकी मुझ तक पहुंच नहीं है। ये जलालतुन, दलालतुन लफ्ज ये तनवीन के साथ आया, तनवीन के साथ। जब तनवीन के साथ कोई हर्फ आता है तो ये अमूमी माना देता है, अमूमी माना। तो उन्होंने कहा मुझ में किसी तरह की किसी भी किस्म की कोई जलालत नहीं है, ना मेरे कौल में, ना मेरे फेल में, ना मेरी हयात में, ना मेरे किरदार में, ना मेरे दीन में, ना मेरी तबलीग में, ना मेरी जिंदगी में, किसी तरह का भी जलालत का मुझसे वास्ता नहीं है, दूर दूर तक वास्ता नहीं है। कि अल्लाह के जो अंबिया होते हैं, रसूल होते हैं, वो पाक होते हैं, वो मसूम अनिल हता होते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सफाई दी। और फिर आगे फरमाया, आगे अपने मनसब जिक्र किया अगले अल्फाज में, फरमाया वलाकिन्नी रसूल मिन रब्बिल आलमीन, लेकिन मैं तमाम जहानों के रब की तरफ से रसूल हूँ। उन्होंने कहा मेरा मनसब तो ये है, अल्लाह ताला, मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल बनकर आया हूँ, रसूल मबूस हुआ हूँ। कोई अपनी तरफ से मैं तुम्हें पैगाम नहीं दे रहा, कोई अपनी तरफ से मैं तुम्हें रिसालत का दावा नहीं कर रहा, बल्कि फरमाया वलाकिन्नी रसूल मिन रब्बिल आलमीन, जो सारे जहानों का परवरदिगार है, सारे जहानों को पालने वाला है। आप ये बात याद रखें कि रब्बुल आलमीन सारे जहानों का पालनहार, ये तसव्वुर तकरीबन हर मजहब में पाया जाता है, हर मजहब में पाया जाता है। हत्ता कि जो हिंदू हैं, बुत परस्त हैं, वो भी मानते हैं कि एक सब खुदाओं से बड़ा खुदा है जो सारे जहानों को पालने वाला है, जो सारे जहानों को पालने वाला है। उनके यहाँ भी ये तसव्वुर मौजूद है। इस तरह बाकी मज़ाहिब में भी ये तसव्वुर मौजूद है। सिख मत हो गए, हिंदू मत हो गए, जैन मत हो गए, सब में ये तसव्वुर मौजूद है। इसलिए आप देखिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मैं अल्लाह की तरफ से रसूल हूँ, बल्कि फरमाया जो तमाम जहानों को पाल रहा है, तमाम जहानों का जो परवरदिगार है, मैं उसकी तरफ से रसूल बनकर आया। ये उन्होंने अपना मनसब रिसालत बयान किया। और जो मुहालिफीन, उनके ज़हन में, मुहालिफीन के ज़हन में जो कमी कजी थी, उन्होंने उसका रद्द कर दिया, अपने मनसब रिसालत को वाज़े कर दिया, अपने मनसब रिसालत को वाज़े कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें हिदायत का नूर अता फरमाए, रहमत का नूर अता फरमाए, कुरान मजीद का कमाक फहम नसीब फरमाए और हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।